Very good morning, viewers, and a very happy Republic Day to all the fellow Indians. As India marks 75th Republic Day, we salute our forces. Battling all odds, the BSF has been at work ensuring that we stay safe at our homes. Here's a report filed by my colleague Gursimran Singh on the preparations by the BSF. The Border Security Force stationed along the western border remain on high alert for Republic Day. BSF has intensified its efforts by conducting round-the-clock patrols to counter the growing threat of use of drones from illicit activities by Pakistan. In the western frontiers, where the troops of the Border Security Force are carrying out round-the-clock drills. This is to ensure that the national festival, the 26th of January, goes smooth. This area has a different kind of a demography when it comes to, they have plain areas, it has water bodies, and so is the Sarkandas, and that's why the threat is increasing with each passing day. But one thing that these troops on ground made it sure that they not only keep a strict vigil on what is happening on ground, but also what is happening in the air. That is a drone threat, and so is the attempt of the adversary when it comes to tackling the threats from the underground tunnels. That also is a major threat when it comes to the western frontier of the Border Security Force. And BSF's deployment ensures coverage of all types of terrain, ranging from rugged mountains to expansive plains. How enemies any attempt, be it from the Border Security Force that they face from the Rangers or from the non-state actors of the Pakistan that are backed by the state trying to mount trouble into the Indian territory, that can also be foiled. And as we move, they also keep a strict vigil on what is happening via air, because the threat remains very clear from the adversary, that the adversary wants to push weapons also into the Indian territory. And these troops of the BSF, they always remain in contact with the headquarters, that if something has happened there, they need to get the information immediately. And for the same, they have the satellite communication devices with them round the clock. This is for the real-time sharing of the information, so that if any event is occurring, that can be conveyed well in time to the headquarters, or headquarters can convey same to the troops on ground. Highly trained women commandos have been deployed to guard the border. All the tough challenges from the adversary and also the weather challenges, the troops, the special commandos of the BSF, that is the Women Commandos Wing, is all alert to thwart any attempt of the adversary. The situation is that an alert has been generated by the BSF that there is a possible attempt of any mischief by the adversary, and you see that the Women Commandos, they have taken their positions. Now as they move out, they have taken their positions. These positions are to thwart the attempt of the adversary, that how the adversary can foil any attempt of the terrorist, and how there can be any mischief that is well foiled well within the time. Time and again we have seen that how the terrorists, those who have infiltrated from the Pakistan, or any smuggling attempt that we see in the recent past, can be foiled well within the time. The BSF is ready to celebrate the 75th Republic Day with the nation. देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, इस बीच सरहदों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य पे किस तरह से बीएसएफ के जवान सरहदों पर कुछ समय निकाल कर राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए झूम रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको पश्चिमी सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर से दिखा रहे हैं। वेस्टर्न फ्रंटियर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जिसके पास सबसे चुनौतीपूर्ण इलाका है, वो इलाका जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब है, और लगातार ये गाने जो हैं वो गाए जा रहे हैं। The nation is in safe hands. Bureau Report, Republic TV.
Now, amid concerns of infiltration on Republic Day, 250 to 300 active launching pads have been identified in various locations in the Pakistan-occupied Kashmir. Now, less than 24 hours remain for the 75th Republic Day of India. In fact, it is the Republic Day already. So here's an insight into the preparedness and determination for security forces along the line of control. इस वक्त हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में। आपको दिखाएंगे किस तरह से सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पेट्रोलिंग हो रही है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर मेरे विजय आपको दिखाएंगे जीरो लाइन पर यहाँ पे जवान जो है डटे हुए हैं। आप मुझे बताइए क्या कहना चाहिए 26 जनवरी के अवसर पर? मैं 26 जनवरी पे यही कहना चाहूँगा, जो भी घर में रहें सुरक्षित रहें। हम उनकी सेवा के लिए 24 घंटे इधर तैयार हैं। उनको किसी बात में डरने की जरूरत नहीं है। मेरी यही सबके साथ बातचीत है। अगर कोई दुश्मन घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने देखा पिछले साल में नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा सेक्टर की अगर हम बात करें, लगातार पाकिस्तान द्वारा यहाँ घुसपैठ करने का प्रयास किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम जो दुश्मन हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करेंगे, हमारे पास ऐसे वेपन हैं जो हम अपनी सुरक्षा के लिए और उसको रोक सकते हैं, जो हम उसको रोक कर उसको उसकी जवाब दे सकते हैं। तो हमारे इलाके में अपने इन्फिल्ट्रेट के रूट है, उनको डोमिनेट करके उनको क्या है एम्बुश के लिए अपना जो एम्बुश फील्ड सिग्नल के साथ आगे मूवमेंट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे अलग तरह से अलग अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स जो हैं इनको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। हालांकि और भी जवान कुछ हमारे साथ हैं, इनसे बात करने का हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला है कि 250 से 300 मिलिटेंट जो हैं वो कश्मीर घाटी कभी भी घुसपैठ कर सकते हैं, आप तैयार है उसको रोकने के लिए? हम दुश्मन को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। हम इसके लिए पेट्रोल कर रहे हैं। हम किसी दुश्मन को अपने फेंस में नहीं घुसने देंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों के लिए जनवरी के अवसर पर? हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देख सकते हो किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स, हालांकि मेरे विजय अगर आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं किस तरह से बर्फ़ के बावजूद यहाँ पे जो पेट्रोलिंग जवान कर रहे हैं। हालांकि कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ पे जो डिफरेंट तरह के अलग अलग वेपन्स के साथ साथ यहाँ पे थर्मल कैमराज के साथ साथ अलग तरह के कैमराज को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, जिससे 2400 घंटे यहाँ की लाइन ऑफ कंट्रोल पर नज़र रखी जा रही है। अभी इनको यहाँ पे आदेश मिला है कि एक ऑपरेशन में जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी किस तरह से रात में ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से अभी डे लाइट में सुबह की सूरज की किरणों के साथ साथ यहाँ पे किस तरह से इंडियन आर्मी जो है ऑपरेशन कर रही है। हालांकि इसके साथ साथ मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे इनको कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखा, उसके बाद यहाँ पे जो जवान जो है अपने एम्बुश में, हालांकि यहाँ पे जवान से बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे 24 जनवरी के अवसर पर जो आपको इनपुट मिला है, यहाँ पे आपने सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है? 26 जनवरी पर हम यही कहना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी को तो किसी भी देशवासी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। इस बीच अगर प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, जो आतंकी संगठन है, चाहे जैश मोहम्मद की बात करें या लश्कर तोयबा की बात करें, वो अगर प्रयास करते हैं घुसपैठ करने की, तो क्या तैयार है? इंडियन आर्मी उनके लिए हमेशा तैयार है, उनका हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप मुझे बताइए, अगर हम इस एरिया की बात करें जो कि काफ़ी स्नो है यहाँ पे, इसके साथ साथ माइनस टेम्परेचर में ये जवान जो है यहाँ पे डटे रहते हैं 2400 घंटे, क्या कुछ चैलेंज है, क्या कहेंगे? हमारी ट्रेनिंग इसलिए की जाती है, हमें -30 से -50 डिग्री तक रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हालांकि मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इनको ट्रेन किया जाता है। -30 डिग्री तक यहाँ पर ये जवान जो है डटे रहते हैं इस इलाके में। हालांकि मेरी विजय अगर मेरे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से दिखा पाए प्रॉपरली किस तरह से अलग अलग एम्बिशंस में यहाँ पे जवान जो है जा रहे हैं। हालांकि आप देख रहे हो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग अलग सिग्नल से इनको यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। हालांकि यहाँ पे ये प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाते, उसके साथ साथ यहाँ पे इनको अलग तरह के इशारे किया जाते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है। हालांकि आप देख सकते हो किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको इससे पहले जो रात वाले ऑपरेशंस दिखाता है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से डे लाइट में इंडियन आर्मी ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर घाटी के लाइन ऑफ कंट्रोल पर।
इस वक्त हम उस बंकर में मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं किस तरह पर यहाँ से पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड्स या और जितने भी वहाँ के अपोजिट साइड से, अगर मेरे विजय आपको दिखा पाए, जो भी लोकेशन है वहाँ पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर जवान को डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अलग अलग वेपन्स इनको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हालांकि हम जवान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो देखेंगे क्या कुछ कहेंगे 24 जनवरी के अवसर पर, क्या कुछ प्रिपरेशन है अगर दुश्मन 26 जनवरी के अवसर पर यहाँ पर घुसपैठ करने का प्रयास करता है। मेरे पास कंपनी का सपोर्ट वेपन है। अगर दुश्मन कोई हरकत करता है या घुसपैठ करने की क्षमता करता है तो हमारे पास सपोर्ट वेपन है, ऑटोमेटिक वेपन है। इससे हम आपकी लगातार फायर करेंगे और दुश्मन को मार करेंगे। देश भर में सेलिब्रेशन चल रही है 26 जनवरी के अवसर पर, लेकिन आप यहाँ पे कड़ाके की सर्दी के बावजूद यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल को सुरक्षित रख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए इस अवसर पर? जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए हमारे पास लगातार ज़्यादा ठंड होने के कारण स्पेशल इक्विपमेंट आता है जो हमारे -30 डिग्री से -50 डिग्री को कवर करता है और हमें उसमें कोई ठंड नहीं लगती है। और हम दुश्मन को जो LC है उसके पास पेट्रोलिंग करते हैं तो हम उनका सख्त से सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। आपने देखा किस तरह से जवान ने यहाँ पे कहा किस तरह से इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स के साथ साथ इनको क्लोथिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी चैलेंजिंग वेदर के बावजूद भी यहाँ पे जो जवान हैं लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटे रहते हैं।